کا چشتیہ میں بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ۔ عمران خان کہتے ہیں نواز شریف نظریہ کرپشن کا نام ہے، اپنا لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے فوج کے خلاف بھی ہر قسم کی سازش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ شریف، میں آج دعویٰ کرتا ہوں، آپ اپنے پیسے بچانے کے لیے جو آپ نے 300 ارب روپیہ اس ملک سے چوری کر کے بیرون ملک لے کے گئے ہو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس پیسے کو بچانے کے لیے آپ ہر قسم کی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ آپ کا پیسہ بچ جائے۔ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے بھی حکومت پر تنقیدی بات، کہا غریب کی جیب سے نکلا ٹیکس حکمرانوں کے خزانوں میں جاتا ہے۔ نواز شریف کی اب اگلی منزل اڈیالہ جیل ہوگی۔ حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، ملک میں افراتفری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود رشید کی میاں والی کے علاقے پیپلا میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں چند ہفتوں تک شہباز شریف کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ تحریک انصاف جنگل کا روپ دھار چکی ہے۔ بہاولپور شعبہ خواتین کی سابق ضلع صدر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ روہی سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی اپنی اصلیت کھو بیٹھی ہے۔ ملتان کے علاقے بستی نادلہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر کنونشن، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی سمیت جیالوں کی بھرپور شرکت، کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی قیادت صرف بلاول بھٹو ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کل کو آنے والے مستقبل کے مسائل سمجھتا ہے، یوتھ کی پرابلم کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف بلاول بھٹو صاحب ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی کے حکمرانوں نے توانائی بحران کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، ہم نے ملک میں چھائے اندھیروں کو ختم کیا۔ ملتان، رحیم یار خان اور بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں معذوروں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد، آگاہی واک بھی کی گئی، شرکا کی معذور افراد سے اظہار یکجہتی۔ خصوصی افراد کو مفید شہری بنانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا خصوصی افراد کے عالمی دن پر پیغام، کہتے ہیں حکومت خصوصی افراد کے لیے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ بہاولپور میں وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان کے قافلے میں شامل ایک گاڑی کو حادثہ، 3 افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ وفاقی وزیر نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ مظفر گڑھ کی یوسی دین پور میں چک مٹھن تابیلی جنوبی پختہ سڑک بنے گی، ممبر صوبائی اسمبلی میاں عمران قریشی نے سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 6.5 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومتی احکامات ہوا میں، خانپور میں مقامی پٹاخت پر چائلڈ لیبر ایکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی، انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ لودھرا میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے، 2 افراد نے 60 سالہ شخص کو ڈنڈے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزمان اکمل اور اکبر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کوٹادو میں زہریلے پانی سے بڑے پیمانے پر سبزیاں کاشت کرنے کا انکشاف، موزے سے سبزیاں کھانے سے شہری مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے، انتظامیہ خاموش۔ کوٹادو کے علاقے غریب آباد کے مکین آلودہ پانی پینے پر مجبور، واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ 7 سال سے بند، شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ ملتان کی مرکزی جامعہ مسجد جنازگاہ لوہا مارکیٹ میں سنی تحریک کے زیر اہتمام 14 ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد،
سابق وزیر حامد سعید قاسمی اور دیگر علماء سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہو ہمت اور کچھ پانے کی لگن تو بڑی سے بڑی رکاوٹ منزل سے دور نہیں کر سکتی۔ رحیم یار خان کی پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں سے محروم کرن بلند حوصلے کی مثال ہے۔ 10ویں کلاس کی طلباء کی ڈاکٹر بننے کی خواہش۔ ملتان نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے طلباء کا لودھرا کا مطالعاتی دورہ۔ جلارائی میں زمین اور پانی پر تجرباتی رپورٹ پیش کی۔ بہتر کاشت کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی بھی کی۔ جہانیہ میں نجی تنظیم کے زیر اہتمام 7 روزہ فری اسکریننگ کیمپ اختتام پذیر ہو گیا۔ مختلف مقامات پر لگائے گئے کیمپ میں 1400 سے زائد شہریوں کی اسکریننگ کی گئی۔ ملتان کے علاقے چاء عثمان والا بیت القریش میں سالانہ محفل میلاد۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ ناخوانوں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر کے سامعین کے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کیا۔ اور ملتان میں سجاد چانٹا کبڈی کا میدان۔ اچھو بکرا اور بلوچ پہلوان کی ٹیمیں مد مقابل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی ممکنہ طور پر دوبارہ مسلم لیگ میں شمولیت کی خوشی میں لیگی کارکنان کا جشن۔ مٹھائی تقسیم کی اور جاوید ہاشمی کے حق میں خوب نعرے بازی بھی کی۔ مزید جانتے ہیں عادل نظامی کی رپورٹ میں۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے چوک کمارا والا پر جاوید ہاشمی کے حق میں مظاہرہ کیا۔ لیگی کارکنوں نے ویلکم ویلکم جاوید ہاشمی ویلکم کے نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر کارکنوں کا کہنا تھا کہ جاوید ہاشمی مسلم لیگی تھے اور ہمیشہ مسلم لیگی ہی رہیں گے۔ میں اور میری پوری جماعت ہم مخدوم جاوید ہاشمی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ ایسے عناصر ہیں جو مخدوم جاوید ہاشمی کی ذات پہ کچھ بات کرنے والے ہیں، ہم ان کا انشاءاللہ تعالی منہ توڑ جواب دیں گے۔ لیگی کارکنوں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ایک ٹولہ ہاشمی صاحب کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ چند لوگ ہیں جن کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم اعلیٰ قیادت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں، یہ بس ایک اپنے مفاد پرست ٹولہ ہے جو جاوید ہاشمی کی مخالفت کر رہا ہے۔ کارکنوں نے جاوید ہاشمی کی ممکنہ شمولیت کی خوشی میں مٹھائی بھی تقسیم کی۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ عادل نظامی، ملتان۔ پیپلز ٹریڈز ونگ جنوبی پنجاب کے زیر اہتمام گیلانی ہاؤس میں 8 دسمبر کو تاجر کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا، جس کی صدارت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کریں گے۔ کنونشن میں جنوبی پنجاب کے تاجر شرکت کریں گے، جہاں ان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اہم کردار ادا کرے گی۔ کنونشن میں صرافہ بازار سے سید شفقت حسین گیلانی، ممتاز آباد مارکیٹ سے عاشق حسین بلوچ، حاجی محمد حفیظ لوہا مارکیٹ اور دیگر مارکیٹوں کے صدر اور عہدیداران شرکت کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود رشید کی میاں والی کے علاقے پیپلا میں ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر سردار محمد سبطین خان کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کامیاب حکمت عملی سے نواز شریف کو اقتدار سے ہاتھ دھو کر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر میاں محمود رشید کا کہنا تھا کہ حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے اور ملک میں افراتفری ہے۔ موجودہ حالات کے اندر جو یہ ختم نبوت والے مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ حکومتی رٹ کا بھی نقصان ہوا ہے اور حکمران خاندان اور مسلم لیگ نون کا بھی نقصان ہوا ہے، اور یہ ابھی تک باوجود پوری قوم کے مطالبے کے اصل ذمہ دار جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا کہ کس کی ایما پہ یہ سارا کچھ کیا گیا۔ یہ ابھی تک معاملہ ابھی باقی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بہاولپور شعبہ خواتین کی سابق ضلع صدر شازیہ نورین نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 10 سال تک تحریک انصاف کے لیے کام کرنے والی شعبہ خواتین کی سابق صدر نے روہی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تحریک انصاف مفاد پرستوں اور جاگیرداروں کی جماعت بن چکی ہے، جس میں مڈل کلاس ورکرز کی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی کے لیے اس وقت محنت کی جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف میں جس طرح کی
जबान इस्तेमाल की जाती है वो सुनने के काबिल नहीं होती। जहानिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 50वें यौम तासीस का केक काटा गया। इस मौके पर जयालों की कसीर तादाद में शिरकत। जहानिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों ने तहसील सदर असलम एहसास, सिटी सदर शहबाज अरगर, जनरल सेक्रेटरी तैयब एजाज के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 50वें यौम तासीस का केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। इस मौके पर तहसील सदर असलम एहसास का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी एक ताकत थी और आज भी एक कुव्वत का नाम है और आने वाले जनरल इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद कासमी कहते हैं कि हल्फनामे में तब्दीली करके हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी, जबकि हुक्मरानों के अज़ाइम इससे भी ज्यादा खतरनाक थे। इस हवाले से देखते हैं आदिल निजामी की ये रिपोर्ट। मुल्तान में सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम जामिया मस्जिद लोहा मार्केट में इस्लामाबाद धरने में जांबाक अफराद की रस्म कुल मुनक्किद हुई, जहां खिताब करते हुए हामिद सईद काज़मी का कहना था कि धरना देने वाले किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में बैठे रहे। अजाने देते थे, नमाजें पढ़ते थे, मस्जिदें बनाते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, जलसे करते थे, जुलूस निकालते थे, सब कुछ करते थे। और राना सनाउल्लाह की जबान में कि जनाब वो बस एक जरा थोड़ा सा मसला था, बाकी तो सब वही करते थे जो मुसलमान करते थे। उनका कहना था कि हुकूमत ने आइन में कोई तब्दीली नहीं की, अभी सिर्फ हल्फनामे में तब्दीली की साजिश हुई। हुकूमत अवाम का रिएक्शन देखना चाहती थी। हुकूमत दोबारा इस बारे में सोचने से पहले भी 1000 बार सोचेगी। तो वो कानून के अंदर तब्दीली करना चाहिए थी, आइन पे अभी हाथ नहीं डाला था, लेकिन मैं समझता हूं ये एक तरह से फीलर था। वो चाहते थे कि जरा देखें, जरा कानून को और हलफनामे को तब्दील करने की कोशिश करें, अवाम का रिएक्शन क्या आता है। अगर वो इस बात को सह जाते हैं, अगर पी जाते हैं, अगर खामोश रहते हैं, तो फिर जरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ये उन्होंने चक्कर चलाने की कोशिश की थी। तकरीब के इख्तिताम पर जांबाक होने वाले अफराद के लिए दुआ की गई और लंगर तकसीम किया गया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ आदिल निजामी, मुल्तान। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मियां इमरान कुरैशी का कहना है कि नून लीग की हुकूमत ने जनूबी पंजाब की पसमानदगी खत्म करने का अज़्म कर रखा है। जनूबी पंजाब में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। यूनियन काउंसिल दीनपुर में जनूबी बरलब तलेरी नहर पर 4 करोड़ की खती रकम से तैयार होने वाली 6.5 किलोमीटर तवील सड़क की संगे बुनियाद रखी गई। इस मौका पर मियां इमरान कुरैशी का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने दही इलाकों में सड़कें बनवाकर जनूबी पंजाब से मोहब्बत का सबूत दिया है। यूनियन काउंसिल दीनपुर में MPS ग्रांट से करोड़ों रुपए की लागत से बेशुमार तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। मजीद फंड मिलते ही दीनपुर बस्ती की मौलवी वाला में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का काम शुरू किया जाएगा। मुल्तान फिक्स इट मुहिम के तहत जे रोड पर नेशनल डेंटल अस्पताल के सामने रोड पर पड़े गड़ों को पुर कर दिया गया। इस हवाले से देखते हैं सैयद मासिन की ये रिपोर्ट। फिक्स इट मुहिम के तहत आज डेंटल अस्पताल रोड पर मौजूद गड्ढों को पुर किया गया। इस मौके पर कारकुनान का कहना था कि रोड को ठीक करने से शहरी बआसानी सफर कर सकेंगे और ये काम वो खिदमत खल्क के तौर पर कर रहे हैं। बहुत सारी जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आती हैं, हम वहाँ पे रोड रिपेयरिंग की एक्टिविटीज, प्लांटेशन की एक्टिविटीज, स्ट्रीट क्लीनिंग की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। इस मौके पर फिक्सिट के नौजवान कारकुनान का कहना था कि बानी आलमगीर की हिदायत पर प्लांटेशन, गलियों की सफाई और रोड की तामीर जैसे काम अंजाम दे रहे हैं। अवाम की जानिब से जिस इलाके से शिकायत मिलती हैं, वहां उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। हमारा ये करने का मकसद है कि जो मुतलका इदारा है और जो मेयर साहब हैं जो ख्वाब खरगोश की नींद सोए हुए हैं, उनसे जवाब लेना है कि भाई ये आपका काम है, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है, मुतलका महकमे की कोई तवज्जो नहीं है। इस मौके पर फिक्सिट कारकुनान का मेयर मुल्तान और इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि इंतजामिया अपने हिस्से का काम करने में नाकाम है, जिसके बायस शहरी उनकी तंजीम को शिकायत करके अपने मसाइल हल करा लेते हैं। कैमरामैन राव शहबाज के साथ सैयद माजिन, मुल्तान। मुस्लिम लीग नून के MPA शहजाद मकबूल भुट्टा की अब्दुर्रहीम मौलाना मरहूम के घर आमद, मरहूम के बेटों से ताज़ियत की। मुल्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन अल्लाह नवाज मौलाना के मामू गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए थे। मुस्लिम लीगी MPA पीरज़ादा शहजाद मकबूल भुट्टा आज मरहूम की रिहाइश गाह पहुंचे, जहां उन्होंने मरहूम के बेटों से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ की।
مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، دیکھتے رہیے۔ بیوٹی کریم پرل جیسی انمول جلد، دیکھتے ہی دیکھتے صاف شفاف نرم و نازک۔ خوبصورتی ایک سچا خواب، گولڈن پرل۔ کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز، روحی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز۔ دنگل کے ڈھول پر فتح کا اعلان، ہار جیت سے بڑھ کر پریت کا پیغام، بات ثقافتی میلوں کی ہو یا مقامی کھیلوں کی، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44۔ ویلکم بیک۔ پاکستان ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ہیلتھ سینٹر میں ٹی بی سے آگاہی بارے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹی بی سے بچاؤ اور تشخیص کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں امجد ملک کی یہ رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کنونشن کے تحت ہونے والے سیمینار میں ڈپٹی میئر منور احسان قریشی، رکن صوبائی اسمبلی میاں شہزاد مقبول بھٹا، CEO ہیلتھ اتھارٹی ملتان ڈاکٹر شاہد بخاری سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ہیلتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر وسیم رمزی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ٹی بی کنٹرول پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ جین ایکسپرٹ مشین وہ مشین ہے کہ وہ پیشنٹ کو ڈائگنوز کرتی ہے کہ پیشنٹ کی جو دوائیاں ہیں INH، ریفیمپاسن، ایتھمبیوٹال، اور ان میں سے کون سی دوائی کے خلاف جسم کے سیلز نے ریزسٹنس ڈیولپ کر لی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ملتان ڈاکٹر شاہد بخاری کا کہنا تھا کہ محکموں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے سے انتظامی معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں میں فراہم کردہ ادویات ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں سے چیک کرائی جاتی ہیں۔ اقدامات کا تسلسل اس طرح جاری رہا تو ملک عالمی معیار کے مقابلے میں آ جائے گا۔ ہیلتھ کیئر جو لوگوں کو ہم نے پرووائڈ کرنی تھی، وہ اب اللہ کے فضل سے عالمی معیار کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان ٹی بی کے مرض میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہیلتھ کنونشن کا مقصد پاکستان کو اس مرض سے پاک کرنا ہے۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام سے مرض کی بروقت تشخیص، مفت علاج اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین فراست عباس اور وجاہت جمیل کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ زندگی کو بہتر انداز میں جینا سب کا حق ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملتان میں معذوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید مازن کی یہ رپورٹ۔
वॉक के शुरा जिनमें तमाम उम्र के अफराद शामिल थे नवाशहर चौक पर जमा हुए। वॉक में व्हील चेयर्स पर मौजूद बच्चों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। शुरा का कहना था कि माजूर अफराद किसी पर बोझ नहीं होते, अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो ये अपनी जहानत के बलबूते पर दूसरों से आगे निकल सकते हैं। माजूरी हमारे अंदर नहीं है, बाहर है। अगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए कम है, ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के अंदर 1,70,00,000 इस टाइम माजूर अफराद मौजूद हैं, लेकिन सब बेरोज़गार हैं। हमारे पास कोई प्रॉपर जॉब्स नहीं है, रोज़गार के ज़रिए नहीं है, ज़ाती मामन नहीं है हमारे पास, अटेंडेंटशिप नहीं है हमारे पास जिसकी मदद से हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकें। मुल्क भर में वॉक और सेमिनार्स का मकसद माजूर अफराद के हकूक को उजागर करना है। पाकिस्तान में 1,70,00,000 के करीब माजूर अफराद अपने हकूक से महरूम हैं। खिदमत कार्ड्स में नौकरियों के कोटे के मुताबिक उनको मौके फराहम नहीं किए जाते, जिसके बायस स्पेशल अफराद परेशानी से दो चार हैं। जितने भी जो महरूम जो घरों में जो मजदूर अफराद हैं उनको बाहर निकाले, उनको रसाई दे, उनका जो हकूक है उनका पहुँचाया जाए। हमारे गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इनको जॉब और जिनके जो मसाइल जो इमदाद वगैरह जो दी जाती है, हम चाहते हैं कि प्रॉपर इनको कारोबार करवाया जाए जो अपने पैरों में खुद मुख्तियार हो सके। आगाही वॉक नवाशहर चौक से शुरू हुई और प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन हमदोश डार के साथ सैयद माजिन, मुल्तान। बहावलपुर में मासूरों के आलमी दिन पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मासूर अफराद में चेक, सफेद चड़ियाँ और व्हील चेयर तकसीम की गई। इस हवाले से देखते हैं महमूद शहीद की रिपोर्ट। माजूरों के आलमी दिन पर बहावलपुर के जिला कौंसल में माजूर अफराद की माली इमदाद के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुआशरे के महरूम और माजूर अफराद में चेक्स तकसीम किए गए। 4 लाख के करीब तकरीबन 60 स्पेशल अफराद में चेक तकसीम किए जा रहे हैं। उनमें वाइट केन्स, सफ़ेद छड़ियाँ, टाकिंग वाचेस, इसके अलावा उनको व्हील चेयर तकसीम की जा रही हैं। तकरीब में नाबीना अफराद को सफ़ेद छड़ियाँ और बोलने वाली घड़ियाँ भी दी गईं। नाबीना अफराद ने हुकूमत की काविश को खूब सराहा। हमें सफ़ेद छड़ी और टाकिंग वाच दी गई है। ऐसे काम हमारे पाकिस्तान में ब्लाइंड लोगों के लिए एजुकेशन के इदारे भी हैं, वो काम कर रहे हैं। तकरीब में MN परवीन मसूद भट्टी और सेनेटर साउद मजीद ने खसूसी शिरकत की। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान में खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौका पर वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में मासूर अफराद और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक की रिपोर्ट। खुसूसी अफराद की वॉक DC ऑफिस से शुरू होकर क्लब चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक का मकसद आवाम को ये बताना था कि खुसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा हैं जो फाल किरदार अदा कर सकते हैं। हमें अगर इंशाल्लाह इतना पोटेंशियल है कि हम भी मुआशरे में आम शहरियों की तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अपने हर एक मामलात में हम खुद इंडिपेंडेंट होते हैं। हम मुसलमानों को कम से कम इनके साथ इनके जज्बात की तायीद करते हुए, इनके जज्बात का एहसास करते हुए इनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। खुसूसी अफराद की थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दी जाए तो ये मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, जो किसी पर बोझ बनने की बजाय मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में मासूरों का आलमी दिन पर बच्चों के साथ नावसलूक का वाकया सामने आ गया। गूंगे बहरे बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात के बाद भी हुकूमत के अहकामात को यकसर हवा में उड़ा दिया गया। मुल्तान में गवर्नमेंट स्कूल के गूंगे बहरे बच्चों से बस कंडक्टर का काम लिया जाने लगा। बस में मौजूद कंडक्टर मोबाइल फोन पर फेसबुक इस्तेमाल करने में मसरूफ रहने लगा, जबकि गूंगे बहरे बच्चों को कंडक्टर सीट पर बैठा दिया गया। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन की स्कूल की बस की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि कंडक्टर ड्राइवर के साथ बैठा फेसबुक और गपशप में मसरूफ है। वाकये के बाद बच्चों की जानिब से चीफ जस्टिस को दरखास्त भी भेज दी गई है। जहानिया में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम जारी 7 रोजा फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इख्तिताम हो गया। इस हवाले से देखते हैं माजिद असलम की रिपोर्ट। मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए कैंप में 1400 से ज्यादा शहरियों की स्क्रीनिंग की गई। हेपेटाइटिस B, C और शुगर टेस्ट के लिए लगाए गए इन कैंप्स के ऑर्गेनाइजर मेंबर कौमी असम्बली हल्का 159 चौधरी इफ्तिखार नजीर ने स्क्रीनिंग कैंप और यूनिट का जायजा लिया और स्क्रीनिंग आलात भी चेक किए। मुख्तलिफ आई कैंप भी लगते रहे हैं
और शुगर के कैंप भी लगते रहे हैं, और जिसमें अब अल-खिदमत वालों ने हमारे साथ तावन करते हुए मेहरबानी की और जहानिया में 10 रोज के लिए ये स्क्रीनिंग कैंप लगाया। कैंप के आखिरी रोज अल खिदमत फाउंडेशन की वैन में खिदमत अंजाम देने वाले और सिटीजन एक्शन फोरम के मेंबरान को मावनत फराहम करने पर मेंबर कौमी असम्बली चौधरी इफ्तिखार नजीर और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाजी अताउर रहमान ने तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौका पर सदर सिटीजन एक्शन फोरम अब्दुल मजीद रहमानी, सरवर नजीर और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन के हमरा माजिद असलम, रोही, जहानिया। बहावलपुर के चिड़ियाघर में हेल्थ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मलिक इकबाल मुनीर ने कन्वेंशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जिशान राउत समेत महकमा हेल्थ के सीनियर ऑफिसर्स और हेल्थ वार्डर्स समेत तकरीब में शरीक हुए। चिड़ियाघर में हेल्थ कन्वेंशन का मकसद शहरियों को पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात की फराहमी बारे आगाह करना था। मुकर्रीन का कहना था कि पूरे मुल्क में हेल्थ रिफॉर्मर्स पर सूबा पंजाब सबसे आगे है। 2 सालों में 2 करोड़ लोगों महकमा सेहत की इन सहूलियात से मुस्तफीद हो चुके हैं। खबर दे मुल्तान से, जहां पे मुल्तान निश्ता अस्पताल के कमेटी रूम में मेडिकल ऑफिसर्स और दीगर असामियों पर इंटरव्यूज का सिलसिला कल से शुरू होगा। इंटरव्यू लेने वाली कमेटी में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की नुमाइंदगी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर करेंगे। निश्ता अस्पताल के कमेटी रूम में 4 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट और दीगर भी शिरकत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान निश्ता अस्पताल के कमेटी रूम में कल से शुरू होने वाले डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेने वाली कमेटी में शामिल होंगे। खबर दें मियांवाली से, जहां पर मियांवाली के इलाके अलोवाली में नौजवान का तनसीफ तारीख अलोवाली की तकरीब रुनुमाई। पंजाब अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद मेहमान खसूसी थी। तकरीब की सदारत मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर गफूर शाह कासिम ने की। पंजाब असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर सरदार मोहम्मद सब्तैन, MPA मलिक अहमद खान और मारूफ अदीब और शायर मंसूर अफाक ने भी तकरीब में शिरकत की। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए। लस्सी का ठंडा गिलास और सास का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन, बल्कि दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया।
मुल्की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात। रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम
आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? शहर की आम मार्केट गुलाई कमेटी के गिर्द तजावजात माफिया का राज जारी। शहर में नाजायज तजावजात के बायस ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डेरा गाजी खान की अहम मार्केट गुलाई कमेटी के गिर्द नाजायज तजावजात के बायस शहर में ट्रैफिक जाम रहने लगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में मौजूद दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर नाजायज फट्टे और सामान रख दिए। आदि रोड तक तजावजात माफिया का कब्जा बरकरार है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि जिला इंतजामिया फौरी एक्शन लेते हुए तजावजात का खात्मा करे। रहीम यार खान के इलाके चक नंबर 110 बी में सीवरेज का मसला तूल पकड़ गया, जिससे इलाके में बीमारियों की लपेट में है। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। जगह जगह गंदे पानी के जौहर और 5 साल से बहते गटर शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं। हर कोई इस मसले से परेशान है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए सीवरेज के पानी का दरिया आबूर करना पड़ता है। वल्दी अज कई दफा गए उन्होंने कहा आ गंदगी है, नाल पानी है, नाल बच्चियों का स्कूल है, रस्ता कोई नहीं, लंघण का राह कोई नहीं, बीमारी फैली पई इत्थे तां। सानू बहुत तंगी इस चीज़ की, पानी उबल रहा, गटर उबल रहा, बच्चे घरों निकलते स्कूल वास्ते ते वर्दियां लपेट के अंदर जा वड़दे। ते सानू इतनी तंगी बच्चों का ख्याल करीदा कि मत्ता गंदे पानी जी गटर च डिग पवे बच्चा कोई। गंदा पानी मुसलसल जमा रहने से बीमारियों और मच्छरों की बहुतात है। छोटे बड़े सब पेट और दीगर मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसका ताहाल कोई हल नहीं निकाला जा रहा। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सनावा में क्रचिंग सीजन का आगाज शहरियों के लिए उबाले चांद बन गया। लिंक रोड और गुजरात रोड पर गन्ने से भरी ट्रालियों का रश रहने से शहरी परेशान हैं। गुजरात रोड, सनावा शहर और रिंग रोड पर गन्ने से लोड ट्रालियों का रश लग गया। फातिमा मिल से 5 किलोमीटर तक हर रोड पर ट्रालियों का रश रहने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सिंगल रोड होने की वजह से ट्रैफिक गुजरने का रास्ता नहीं रहता, जिसके बाद घंटों रोड ब्लॉक रहना मामूल बन गया, जिससे हर कोई परेशान दिखाई देता है। मुल्तान में रिक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार गुत्थम गुत्ता हो गए, एक दूसरे पर खूब हाथ साफ किए। अदम बर्दाश्त का कल्चर शहरियों में परवान चढ़ने लगा। शहरी मामूली बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। निश्तर रोड पर मोटरसाइकिल टकराने पर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर हाथापाई पर उतर आए। दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों और डंडों की बरसात कर दी। राहगीरों ने मदाखलत करके मामला रफा दफा कर दिया। मुल्तान के नवाही इलाके बस्ती मलूक के करीब रुई से लदे ट्रॉलर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग ने ट्रॉलर पर लदी रुई की गांठों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए की कपास की गांठें जल गई। रेस्क्यू टीमों ने ट्रॉलर के इंजन के हिस्से को अलहदा करके आग से बचा लिया। आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी, जबकि इत्तला पर पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। आग लगने से ट्रैफिक की रवानी भी कुछ देर के लिए मुतासिर हुई। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए। व्हाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन आपकी स्किन को नरिश करे और बनाए सिल्की सॉफ्ट और दे आपको लॉन्ग लास्टिंग प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, इंस्टेंट फेयरनेस विद सन प्रोटेक्शन। गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन, स्किन दैट फील्स गुड। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग।
सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हो या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात। रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है।
आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट शरीफ से जहां पर 3 बच्चों की मां की कमरे में फंदे से लटकती लाश बरामद हुई। वालिदैन का ससुरालियों पर कत्ल का इल्जाम, पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। मोहल्ला शम्स कॉलोनी की रिहायशी खातून इरशाद की फंदे से झूलती हुई लाश की इत्तला पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश तहवील मिलेगी। खातून के वालिदैन का कहना है कि इसे कत्ल किया गया। ससुराल वालों ने लटकाकर खुदकुशी का रंग दे दिया, जबकि ससुराल वालों का मौक़िफ़ है कि कत्ल का इल्जाम गलत है। खुदकुशी या कत्ल पुलिस तहकीकात करने में मसरूफ है। लाश रूरल हेल्थ सेंटर में मुंतकिल कर दी गई। मुल्तान में थाना गुलगश्त की हदूद अल-फलाह कॉलोनी ब्लॉक 20 से खुले प्लॉट से तशद्दुद लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश मिलने वाली 45 साल प्रॉपर्टी डीलर आशिक हुसैन की है। आशिक हुसैन पुल प्रारा का रिहायशी था। आशिक हुसैन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल प्लम्बर की दुकान में किया गया। कत्ल के बाद लाश को करीबी प्लॉट में फेंक दिया गया। कत्ल के बाद प्लम्बर की दुकान का मालिक मौका से फरार हो गया। वाकये के बाद क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके लाश को निस्र अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मकामी सहाफी मुनव्वर भट्टी की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद शरीफ में नाज़ख्वानों और माकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में बयान किया। महफिल में सदर प्रेस क्लब AB मुजाहिद, जमात अहले सुन्नत के ज़िला अमीर सैयद हलाल जावेद काज़मी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद में शिरका ने दरूद पाक का वर्द किया। मुल्तान में छुट्टी के रोज कसूरी ग्राउंड में कबड्डी का मैच देखने वालों का रश लग गया। मुल्तान में सजा चांटा कबड्डी का मैदान, अखाड़े में आया एक से बढ़कर एक पहलवान। इस दौरान अच्छू बकरा और बलोच पहलवान की टीमों ने भी शिरकत की। डेरा गाजी खान में इतवार के रोज शहरी जहां पार्कों और तफरीह गाहों का रुख करते हैं, वहीं खेल के मैदानों में भी रश बढ़ जाता है। डेरा गाजी खान में इतवार के रोज शहरी छुट्टी मनाने के लिए जहां पार्क और दीगर तफरीह गाहों का रुख करते हैं, वहीं खेल के मैदानों में भी रश बढ़ जाता है। शहरियों के लिए इतवार के रोज कंपनी बाग में स्पेशल चाय, मूंगफली और दीगर अशिया के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। शहरियों का कहना है कि छुट्टी के रोज खेलने का टाइम मिलता है, वो इस दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। अपडेट करें मेलसी से, जहां पर बच्ची की नाश बरामद होने का मामला। 7 साल बच्ची की नाश बरामद होने पर बच्ची के वर्षा ने रोड को ब्लॉक कर दिया। कॉलोनी चौक, रेलवे फाटक और टोल टैक्स मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया। खबर दे रहे हैं मेलसी से, जहां पर बच्ची की नाश बरामद होने का मामला। 7 साल बच्ची की नाश बरामद होने पर बच्ची के वर्षा ने रोड को ब्लॉक कर दिया। कॉलोनी चौक, रेलवे फाटक और टोल टैक्स मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही अब्दुल समद से। जी समद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की शाम को जो है 7 साल बच्ची जहरा जिसका नाम था, जो अचानक लापता हो गई। वर्षा ने एप्लीकेशन थाना सिटी मेलसी में दी, जिस पर अगवा का मुकदमा जो है वो भी दर्ज हो गया। लेकिन आज जो है तकरीबन 3 बजे के करीब पुलिस को इतला मिली कि एक थाना फद्दा चुंगी के करीब
सिटी मैरिज हॉल के पास जो बच्ची की लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर पहुंचकर बच्ची की डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया और जिसके बाद मजीद कार्रवाई जो है वो शुरू कर दिया। इस हवाले से हमारी डीएसपी मेलसी से बात हुई तो उनका कहना था कि बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के बाद जो है मजीद कार्रवाई का जो है वो आगाज किया जाएगा और मुख्तलिफ जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी हवाले से जो बच्ची के बुरसा थे वो मुश्तइल हो गए और उन्होंने जो रोड है वो तकरीबन मेलसी का रेलवे फाटक था, कॉलोनी चौक था, टूल टैक्स था, तीनों जगह जो है वो ब्लॉक कर दी हैं और पुलिस के खिलाफ और इंतजामिया के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल समद हमें अपडेट करने का। बुलंद हौसला और पुख्ता इरादा हो तो कोई भी कमी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकती। ऐसे ही लोगों के लिए एक मिसाल है किरण, जो पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों से मासूर है। 10वीं जमात की तलबा किरण बगैर हाथों के खुद लिखती और मोबाइल पर मैसेज टाइप कर लेती है। किरण इश्तियाक के बुलंद हौसले के बारे में देखते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक की रिपोर्ट। जरा सी हिम्मत और कुछ कर दिखाने का जुनून कामयाब जिंदगी के लिए खुद ही रास्ते बना लेता है। रहीम यार खान की रिहायशी किरण इश्तियाक अपने बुलंद हौसले की मिसाल है, जो दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद कलम के जरिए खुद लिखती है, किसी की मदद लिए बगैर अपने पेपर हल करती है। पढ़ने का तो मुझे बचपन से ही शौक था और जो है मेरे घर वालों ने इसमें मेरा साथ भी दिया है और अभी मैं 10th क्लास तक पहुंच चुकी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ती रहूंगी और अपने जैसे पढ़ लिख के अपने जैसे जो हैं खसूसी लोग हैं उनकी खिदमत करूंगी और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मोबाइल का इस्तेमाल करना किरण के लिए मामूली बात है। कॉल मिलाना हो या मैसेज करना, वो किसी की मोहताज नहीं। किरण डॉक्टर बनकर अपने जैसे स्पेशल अफराद की मदद करना चाहती है। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी